Good morning, student. Today we will discuss about the chemicals, enzymes and other bioactive molecules. Last day I have discussed about the antibiotics and the fermented beverage means the microbes which are used in the industrial products, microbes which are in household products. So today we are discussing about which one? Chemicals, enzymes and other bioactive molecules. So what are the chemicals here? The microbes which are actually what are they producing here? Organic acids, alcohols, enzymes. So organic acid के अंदर who are coming here? Now organic acid के अंदर four types of acids are there. Citric acid is there, acetic acid is there, butyric acid is there, and lactic acid is there. And they are causing agent also. You have to remember. That is the main thing here in this chapter. You have to remember the name of the fungus or bacteria, means the microbes which are actually producing these acids here. Citric acid is producing by Aspergillus niger, which is a fungus. Acetobacter aceti is producing acetic acid, which is a bacterium. Clostridium butylicum is producing the butyric acid, which is a bacteria. And Lactobacillus, we can say Kochii or Baldricus, whatever you can say, that is actually producing the lactic acid. So here four types of acids that we have discussed here. एंड अल्कोहल के बारे में हम बोल सकते हैं कि ईस्ट जो है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, जिसकी साइंटिफिक नेम है, is used for commercial production of ethanol. So here four types of organic acids as well as the ethanol is over. Now we are coming to the enzymes, production of enzymes. Here lipases are there. Here we can say here pectinases are there, proteases are there, streptokinase is there. So these are the name of the actually the enzymes that we have to discuss here. So now we are coming first one, lipase. Lipase is used for which one? Detergent formulation and are helpful in removing oily stains from the laundry. This is the function of which one? Removing oily stains from the laundry. That is the function of lipase enzyme. Next one we are coming about the pectinases and proteases that are actually they are dissolving or clarified. Which one? Now that is actually the, we can say the bottle, we can juice of the bottle, we can discuss that one also. The removing of the, here is it, fruit juices brought from the market are clearer as compared to those made at home. This is because these bottle juice are clarified by which one? Pectinases and proteases. Okay. So pectinases and proteases are actually clarifying the bottle juices which are brought from the market. Streptokinase produced by the bacterium. What is the name of the bacterium here? Streptococcus. And modified by genetic engineering used as the clot blaster for removing the clots from the blood vessels of patients who have undergone myocardial infection and leading to heart attack. So those who are actually myocardial infection may those who are actually affected and that actually that leads to heart attack. In that condition the blood vessels के अंदर अगर कोई clotting है तो clotting को remove करने के लिए किसको चाहिए? Streptokinase, which is produced by which one? Streptococcus. ठीक है. So you have learnt about the acids here, alcohol here, enzymes here and their function and first and foremost their source. बहुत important है क्योंकि वही आता है what are the name of the microbes which are producing this and that. So you have to remember these things. Next one we are coming for the bioactive molecule. Another bioactive molecule who is coming there? Cyclosporin A. This cyclosporin A, actually this is also streptokinase, that is also a bioactive molecule. Okay. Next one is coming cyclosporin A, that is used as an immunosuppressive agent in the organ transplant patient. Is produced by the fungus which is Trichoderma polysporum. है ना? Trichoderma polysporum. So cyclosporin A is actually produced by which one? Trichoderma polysporum. That is actually used for which one? As an immunosuppressive agent in organ transplant पेशेंट. जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है लीवर किडनी, उसके लिए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के हिसाब से कौन यूज होता है? ना साइक्लोस्पोरिन ए. Next one, statins produced by the yeast Monascus purpureus. What is the name? Monascus purpureus have been commercialized as blood cholesterol lowering agents.
It acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol. तो दो आपको बायोएक्टिव मॉलिक्यूल ऑलरेडी है, साइक्लोस्पोरिन ए है that is produced by Trichoderma polysporum, and one more is coming statin which is produced by Monascus purpureus. साइक्लोस्पोरिन ए किसके हिसाब से यूज होता है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, बहुत बार आते हैं क्वेश्चन में. And Monascus purpureus is actually lowering the blood cholesterol level, है ना. Monascus purpureus producing which one? Statins, which is actually reducing the blood cholesterol level. So these are the names of the we can say the microbes which are producing certain chemicals, certain enzymes and certain bioactive molecules. Clear now? नेक्स्ट वन वी आर कमिंग माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट. बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पोर्शन है. तो सीवेज जो होता है मतलब म्यूनिसिपल जो वाटर दैट इज एक्चुअली वेस्ट वाटर वी कैन से दैट इज फुल ऑफ मेजर कंपोनेंट इज द ह्यूमन एक्सक्रीटर, और उसके साथ साथ कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी रहता है. माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के अंदर कौन कौन सा रहता है? जैसे कॉलीफॉर्म रहता है, स्ट्रेप्टोकोकस रहता है, क्लोस्ट्रिडियम रहता है. So these all are mostly pathogenic, है ना. Pathogenic means they are causing the disease here. So that is called sewage, means waste water generated every day in cities and towns that is containing majorly the human excreta, organic matter, microbes, and mostly the microbes are pathogenic. So how to treat the sewage water? Because if without treating we are disposing this sewage water in the river, so at that condition it can contaminate the river and the water will be polluted. So definitely to save the water pollution, save from the water pollution, so we have to go for sewage treatment, and that sewage treatment actually controlled by the mainly microbes. Okay, so first we are coming, so before disposal, okay, that is already I told here. Now we are coming for the that is heterotrophic microbes naturally present in the sewage. This treatment is carried out in two stages, है ना. This actually treatment is carried out by heterotrophic microbes, but दो स्टेप में, एक स्टेप है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक स्टेप है सेकेंडरी ट्रीटमेंट. ये जो स्टेप है हम डिस्कस कर लेंगे. तो इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है ना, दिस ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करते हैं ना, फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल्स. जैसे हम लोग छान लेते हैं ना, जैसे छानने से क्या होता है कि लार्ज और जो पार्टिकल्स होता है वो स्ट्रेनर के ऊपर रह जाता है. वैसे ही इसमें हम क्या करते हैं, रिमूव करते, फिजिकली रिमूवल करते हैं. जैसे लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज. पार्टिकल्स कौन कौन सा है? लार्ज और स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. These are removed in stages. कैसे होता है ना, इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव्ड बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन. पहले जो फ्लोटिंग वाला है उसको आप बार बार सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में उसको रिमूव किया जाता है. देन द गाट मीन्स जो सॉइल्स एंड स्मॉल पेबल्स रहता है उसको रिमूव कैसे किया जाता है? सेडिमेंटेशन के थ्रू. जब भी सब सॉलिड सेटल डाउन हो जाता है, सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज, मतलब जो सेटल हो जाता है, ये जो सॉलिड्स जो है उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्लज, है ना. एंड द सुपरनेटेड मतलब जो लिक्विड आ रहे दैट इज फॉर्म्स द इफ्लुएंट. द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. तो हम पहले क्या किए? पहले फिल्ट्रेशन किए. फिल्ट्रेशन किसके लिए है? जो फ्लोटिंग डेब्रिस है. फिर सेडिमेंटेशन किसके लिए है ना, जो सॉयल और स्मॉल पेबल्स है उसके लिए आप सेडिमेंटेशन किए हो. तो डेफिनेटली जो सेटल डाउन हो गया उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्लज. जो एफ्लुएंट है, जो लिक्विड है, जो सुपरनेटेड फॉर्म है उसको हम क्या बोलेंगे? इफ्लुएंट. अब इफ्लुएंट को आप कहाँ पास कराओगे ना, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आप उसको लोगे. ठीक है, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट इज ओवर. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. इसमें हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं. यहाँ पे जैसे फिजियोलॉजिकल रिमूवल, सॉरी फिजिकल रिमूवल, और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो रहे हैं. तो द प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू द लार्ज एरेशन टैंक. ये दो चीज आपको थोड़ा सा समझना है. एक है एरेशन टैंक, एंड एरेशन टैंक में क्या होता है कि माइक्रोब्स दे आर एक्चुअली एरोबिक, है ना. दे आर एरोबिक माइक्रोब्स आर यूजिंग देयर. वन मोर है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द नेक्स्ट वन दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द एनारोबिक स्लैश डाइजेस्टर. सो ये दो स्टेप में होता है ये चीज़. तो फास्ट हम जो इफ्लुएंट को हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं उसको हम कहाँ पे देंगे? एरोबिक माइक्रोब्स में.
मतलब एरेशन टैंक में देंगे, वाई इट इज़ कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड एंड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। जब भी हम एजिटेशन करते हैं तो क्या हो जाता है ना, एयर दैट इज एक्चुअली एंटरिंग इनटू द एफ्लुएंट देयर and pumped into it. This allows the vigorous growth of useful aerobic microbes. जब भी आप एयर को ट्रांसफ़र करोगे और सप्लाई करोगे तो उसके अंदर जो एरोबिक माइक्रोब्स होता है एरेशन टैंक के अंदर, तो दैट विल बी नाउ फॉर्मिंग द फ्लोक्स. That is the masses of bacteria associated with the fungal filaments to form mesh-like structure. एक mesh माने मतलब एक जाल नेट की तरह बना लेते हैं या एक ह्यूज कैलस बना लेते हैं उधर, associated with the fungal filaments. While growing these microbes, है ना, जो माइक्रोब्स यहाँ पे है, कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द एफ्लुएंट. जो एफ्लुएंट को आपने एरेशन टैंक में सप्लाई किए थे उसके अंदर जितना ऑर्गेनिक मैटर थे, ये जो एरोबिक माइक्रोब्स है ये उसको कंज्यूम कर ली. तो जब भी कंज्यूम कर ली तो ये जो एफ्लुएंट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया. तो दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बीओडी. बीओडी का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. किसको बोलते हैं ना, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वेयर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया. मान लो अब 1 लीटर ऑफ वाटर को, वेस्ट वाटर को आप पानी में, रिवर की जो वाटर ऑफ रिवर में आपने इसको डिस्पोज कर दी, तो उसी वाटर में, उसी वेस्ट वाटर में जितने वी कैन से द ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए एरोबिक जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है रिवर में, उसको जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए उसको ही हम क्या बोलते हैं, बीओडी. ठीक है. तो अगर मान लो पॉल्यूटेड वाटर में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो तो बीओडी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जो माइक्रोब्स वहाँ पे प्रेजेंट है उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए उसको कंज्यूम करने के लिए. लेकिन अगर हम थ्रो करने के पहले ही ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म कर दे तो डेफिनेटली उस एफ्लुएंट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया, और डेफिनेटली जब भी उस एफ्लुएंट को आप थ्रो करोगे तो उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और नहीं चाहिए, उस जो रिवर में एरोबिक बैक्टीरिया है उसके लिए उतना ऑक्सीजन अमाउंट नहीं चाहिए, और तो बीओडी क्या हो गया, कम हो गया. इसका मतलब अगर वेस्ट वाटर में पोल्यूशन ज़्यादा हो तो बीओडी भी ज़्यादा होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि उसको कंज्यूम करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए. अगर ऑर्गेनिक मैटर कम हो तो कम ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑर्गेनिक मैटर ऑलरेडी हम लोगों ने कम कर दी इधर, क्योंकि एरेशन टैंक में एरोबिक माइक्रोब्स ऑलरेडी उसको कंज्यूम कर चुके हैं. ठीक है. इसके बाद तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस्ड. The BOD test measure the rate of uptake of oxygen by the microorganism in a sample of water and thus indirectly, ये बहुत ही important बात है, BOD is a measure of organic matter present in the water. तो greater अगर BOD of waste water मतलब more is its polluting potential, मतलब ज़्यादा BOD उसको चाहिए तो फिर क्या होगा ना, उसमें ज़्यादा polluting material present है उसी sample of water में. ठीक है. Once the BOD of the sewage water is reduced significantly, the effluent is then passed into the settling tank. First aeration tank हो गया, उसके बाद settling tank where the bacterial flocks are allowed to sediment. This sediment is called the activated sludge. A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank. वो पहले aeration tank में दिया जाएगा, है ना, pump back to aeration tank and serve as inoculum. मतलब स्टार्टिंग जस्ट स्टार्टर बोलते हैं ना, जिसको हम दही जमाने के लिए थोड़ा सा इनोकुलम चाहिए, वैसे भी एक्टिवेटेड स्लज की थोड़ा सा अमाउंट कहाँ पे पास किया जाता है ना, एरेशन टैंक में. द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू अ लार्ज टैंक कॉल्ड द एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर. देखो यहाँ पे एरेशन से स्टार्ट हुआ था, फिर हम लोगों ने सेकेंड वेस्ट वाटर को हम लोगों ने सेटलिंग टैंक के थ्रू पास कराया, तो वो जितना उसके पास जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स था वो सेडिमेंट हो गया. अभी उसी सेडिमेंट को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज. उसी की लिटिल बिट अमाउंट को हम कहाँ पे देंगे, फिर से एरेशन टैंक में दे देंगे फॉर द इनोकुलम, एंड द रिमेनिंग पार्ट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर. हेयर अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया व्हिच ग्रो एनएरोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंगी इन द स्लज. अभी ये स्लज के अंदर जो बैक्टीरिया और फंगी है उसको डाइजेस्ट कौन करेगा ना, अनदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया,
है ना. ड्यूरिंग द डाइजेशन द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट इज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड. दीज गैसेस फॉर्म बायोगैस एंड कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट इज़ इनफ्लेमेबल. तो हमें ऑलरेडी आपके पास ये फ्लो चार्ट के हिसाब से मैं आपको दिखा दूंगी तो ऑल भी क्लियर हो जाएगा. जैसे आप देखो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है. आई विल गिव यू इन द नोट्स ऑल्सो. नोट्स में फ्लो चार्ट आपको मिल जाएगा. मैं समझा देती हूँ आपको ये चीज़. देखो पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट दोनों कंडीशन में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और है ना. तो प्राइमरी पहले रॉ सीवेज, उसको हम लोग फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन में प्राइमरी सेटलिंग कर दी. प्राइमरी सेटलिंग के बाद क्या हो गया ना, जो प्राइमरी स्लाज है ना, जो ग्रेट और जो स्मॉल जो पेबल्स होता है, इसको हम लोग सेडिमेंटेशन करेंगे. तो सेडिमेंटेशन में क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग प्राइमरी स्लाज बोलेंगे. ठीक है. और इसके बाद जो एफ्लुएंट मिलेगा, ये तो हो गया जो सेटलिंग वाला पोर्शन, सेटल हो गया जो. इसके बाद जो एफ्लुएंट है उसको हम एरेशन टैंक के थ्रू पास कराएंगे. उसमें बीओडी रिड्यूस हो जाएगा, जितना ऑर्गेनिक मैटर वो रिड्यूस हो जाएगा. कांस्टेंट एजिटेशन और सप्लाई ऑफ एयर में यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है. उसके बाद क्या हो जाएगा, सेटलिंग टैंक के अंदर अभी क्या हो जाएगा कि ये जो बैक्टीरिया, फ्लॉक्स ऑफ बैक्टीरिया दैट इज एक्चुअली सेटल है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लैज. उसी एक्टिवेटेड स्लैज की लिटिल बिट अमाउंट को हम एरेशन टैंक में सप्लाई कर देंगे एज एन एनिकुलम, और बाकी को हम एनारोबिक स्लैज डाइजेस्टर ये टैंक में सप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया है, दे आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग बायोगैस, है ना, मैन्योर्स एंड बर्निंग एंड द लैंडफिलिंग. सो हेयर दे आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग दैट वन. एंड बाकी जो आपके सेकेंडरी सेटलिंग के बाद जो एफ्लुएंट आएगा, जो लिक्विड आएगा, उसको आप रिवर पे डिस्पोज करोगे. इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट के बाद इफ वी आर डिस्पोजिंग दैट वाटर और वी आर थ्रोइंग टू द रिवर वाटर, सो डेफिनेटली दैट वाटर विल बी फ्री ऑफ pollution or less polluting materials will be there. Okay, so next we are coming here it is coming कि जितना urbanization increase हो रहे, the sewage is being produced in much larger quantities and that's why, but sewage treatment की जो plant है उतना नहीं है. sewage treatment plants has not increased. ये तो इंक्रीज होता जा रहे हैं सीवेज, बट उसके ट्रीटमेंट प्लांट इंक्रीज नहीं हो रहे, तो डेफिनेटली ये पॉल्यूशन को इंक्रीज कर रहे. तो इसीलिए क्या है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन. अंडर दिस प्लान it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage may be discharged in the river. Okay, so this is actually about the treatment of we can say about the sewage water. Very important that one. I'll give you the flowchart also. Here you can understand it properly. Okay.